दिस इज पुनीत कौर। मैं अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में काम करती हूँ एज अ प्रिंसिपल जम्मू कैंट में। और मेरा जो आज का टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें ही हमारा जीवन, हमारा करेक्टर और हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। तो आज के इस टॉपिक में मैं यही सब कुछ लेके आई हूँ कि हैबिट्स होते क्या हैं, इनका मकसद क्या रहता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके सोर्सेस क्या रहते हैं, कितनी तरह के हैबिट्स होते हैं और हैबिट बनते कैसे हैं और हम उनको बदल कैसे सकते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ हैबिट्स। नाउ हैबिट होते क्या है, और देयर आर एक्चुअली थ्री different things in life which make change. These three things make difference. And वो क्या है कि हम क्या डेली ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कैसे करना है हमने, स्किल में और नॉलेज में। क्या हम फोकस्ड हैं, क्या हम परसिस्टेंट हैं। अब ये जो करेक्टर्स हैं हमारे डेली लाइफ के, जो हमें ये सब काम करवाते हैं, हमारी डेली ग्रोथ करवाते हैं, हमें फोकस्ड रखते हैं, हमें परसिस्टेंट रखते हैं, वी कॉल ऑल दीज थिंग्स as habits. So habits enable us to acquire these three important characteristics of success, that is daily growth, focus and persistence. So habits, what are habits? Actually habits are persistent daily routine. जो हम दिनचर्या का कार्य करते हैं उसको ही हैबिट कहते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक जो कार्य करते हैं उसे ही हैबिट कहते हैं। नाउ हैबिट्स होते क्या है, हाउ आर हैबिट्स एंड व्हाट आर हैबिट्स। सी, कुछ नहीं है, परसिस्टेंट रूटीन है। अगर हमने ये परसिस्टेंट रूटीन जो हमारी है, दिनचर्या जो है, अगर हमने इसको अच्छे से अडॉप्ट किया है, we will grow daily by acquiring new skills, knowledge and everything. We can say good habits जो हमारे होते हैं, they are investment in our success. As we acquire control on our habits, this is very important, as we acquire control on our habits, we get empowered, which ultimately leads to the path of happiness and success. Habits include physical and mental behavior, how we are doing our daily routine work physically, and what are we thinking, how is our mental behavior, which unconsciously, these two things unconsciously control our life, and they are the secret of our success. They are the secret of our success. So now, what is the purpose of habits? What are the purpose of habits? Now, why habits? The prior purpose of habit is to save brain fuel and workload. Now, let me explain how. Habits are unconscious behavior, like what we are behaving. For example, we get up in the morning and we end up into our washroom, we brush our teeth, and then some of us do puja, some of us go for walks, so these are unconscious behavior which we do daily. Now, unconscious thinking and unconscious decisions which we which we follow daily, they do not require any command, thinking or instructions. They don't consume any fuel or energy. Habits almost require no work, as it is unconscious act, so no fuel is required in that. No fuel. Now, sorry, there was such a noise. We notice that most of our daily habits come from parents. The first role model, the habits we develop in our childhood, we take it to our adult life also. Why so? Because most of these habits have importance in survival. So second, last is that these habits have importance in survival. They help to survive. These parental mimicking is neurological, it is genetical. When a child is born, that child mimics, that child copies the parents. How? There are mirror neurons in our system, in our brain, that enable baby
child or when the child is born to mimic or copy the actions and behavior and emotions of the parents. So this is a kind of ancient relic or historic, we can say, human evolution that aids to survival. तो हम बच्चा जब पैदा होता है वो माँ बाप की नकल करता है, अपने एनवायरनमेंट की नकल करता है. क्यों ऐसा? उसके अंदर, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं. हम सबको पता है हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है, उसमें नर्व सेल्स हैं. तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये उसको एनेबल करते हैं, उसको बताते हैं कि तुमने नकल करनी है. क्यों नकल क्यों करनी है? पहला प्रीमोस्ट है कि उसको सर्वाइवल में वो हेल्प करेगा, उसका सर्वाइवल होगा. सो द हैबिट्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड आर अनलाइकली टू वेरी. एक चीज हमें याद रखनी है कि जो बचपन में हमारे हैबिट्स बनते हैं वो बहुत मुश्किल से बदलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है बहुत सारा. और जब बहुत सारा डेवलप्ड रहता है ब्रेन के न्यूरॉन्स में, आपस में बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं. जब वो लर्निंग करता है तो ये कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं और वो एक सिस्टम पैदा करते हैं हमारे दिमाग में कि हम किस चीज को किस तरीके से याद रखेंगे, कैसे अपना बिहेवियर करेंगे. और धीरे धीरे जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, सिर्फ दिमाग के अंदर वही कनेक्शंस बनते हैं, बाकी के कनेक्शंस धीरे 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 कट होते जाते हैं. अब ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो हैबिट्स हैं, वो बदलते तब है, दे ओनली चेंज जब हम बड़े होते हैं और जब हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं. ये कैरियर है, सेल्फ एजुकेशन है. सो इन सब चीजों से ही हमारे हैबिट्स जो है वो बनते हैं. सो व्हाई हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस इज टेकन अप बाय द ब्रेन? We must understand one important aspect of life. Whenever any cell, organ or organ system does any action or work, it requires weight energy. जो मैंने बात की है ना कि कंजर्व करता है ब्रेन, फ्यूल कंजर्व करता है. कैसे कंजर्व करता है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई काम होता है, एंड वी नो दैट देयर इज साइंस दैट एवरी वर्क रिक्वायर्स एनर्जी. हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. तो ब्रेन, हम पूरे दिन में इतना काम करते हैं, हमारा बॉडी का हर सेल काम करता है, तब जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली कोई काम कर सकता है. मेरे हाथ हिल रहे हैं क्योंकि मेरे जो हाथों की उंगलियां हैं, मेरी जो नसें हैं, उनके जो सेल्स हैं, मेरे जो मसल्स हैं, उनके वो सेल्स हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिससे मेरे हाथ, मेरा मुंह, मेरी आंखें, सब कुछ चल रहा है. तो अगर दिन में हम अनकॉन्शियसली इतने काम करते हैं तो एनर्जी यूज होती है. हम ब्रीदिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, इवन हमारी जो आंख, जब हम आंख को हिलाते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, उस समय भी एनर्जी यूज होती है. कोई भी ऐसा सिस्टम बॉडी का नहीं है जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती है. और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो मेन सोर्स है एनर्जी का. हम सबको पता है, हम खाना खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं. तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो सोर्स है, वो फ्यूल की तरह काम करता है. अब ये जो हम कोई भी काम करते हैं वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट से. जब हमारी बॉडी के अंदर वो जाते हैं, वहां पे वो फैट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वहां पे वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में मसल सेल्स और फैट सेल में स्टोर रहते हैं. जब भी हमारी बॉडी के किसी भी सेल को, सिवाय ब्रेन के किसी भी सेल को कोई काम करना होता है, वो उस मसल से, उस फैट सेल से ग्लूकोज को निकालते हैं, जिसमें इंसुलिन हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है. वहां से निकालते हैं और फिर उस फैट सेल से ग्लूकोज, उस फैट ग्लूकोज को निकाल के, मसल से ग्लूकोज को निकाल के उसको ब्रेक होता है, जो रेस्पिरेशन, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको ब्रेक करके हमारी बॉडी को फ्यूल मिलता है और उन फ्यूल से सेल को जब भी चाहे वो काम करता है. इसका मतलब है हमारी बॉडी में जब भी कोई काम होना है उसको उस काम के लिए एनर्जी अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है फॉर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी बाय द सेल. सो ग्लूकोज इज ripped apart to convert into fuel with the help of oxygen. Now, second component is oxygen. But unlike the rest of the body, which can store glucose or fat, as I discussed, or other form of carbohydrate, the brain can't store glucose. So, brain has
no readily available supply of fuel to use when it needs it. It is very important to understand कि जब भी ब्रेन को काम करना है उसके पास जो है वो ही इस्तेमाल करेगा, उसके पास कहीं पे स्टोर नहीं है फ्यूल जिसको वो यूज कर सकता है. सो द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रीशियस फॉर ब्रेन हैबिट्स. सो हैबिट्स जो हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब कोई ब्रेन के अंदर हम अनकॉन्शियस एफर्ट से कोई चीज चली गई तो ब्रेन को उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और बहुत ही कम एनर्जी में ब्रेन जो है उस फ्यूल को यूज करता है. सो कंजर्व हो गया हमारा फ्यूल. नाउ अब क्या होता है जब हम हैबिट चेंज करने की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेन ने हैबिट बनाया अनकॉन्शियस एफर्ट से. क्यों बनाया? क्योंकि उसको अपना कंजर्व करना है फ्यूल, और जब वो ब्रेक करता है ग्लूकोज को तो बहुत वर्कलोड होता है, तो उसको भी काम, वर्कलोड भी उसका कम हो जाता है. सो ब्रेन रिफ्यूजेस चेंज इन हैबिट, बट व्हाई? क्योंकि इनिशियली, क्यों? अब जब भी हम किसी हैबिट को बनाने की कोशिश करते हैं, व्हाई? इनिशियली व्हेनेवर एनी हैबिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वेदर इट इज स्मॉल as brushing of teeth or as complex as forming the daily routine of exercise or daily habit of reading or anything, the brain invests precious brain fuel, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर करने की जगह नहीं है, जो भी ग्लूकोज उसके अंदर जाता है वो उसको उस हैबिट को बनाने में यूज कर रहा है. So precious brain fuel in creation of habit. Once the habit is formed, there is very little work or no work. So there is less workload required by the brain to manage or engage in a habit. As it is unconscious process, so it is very efficient and brain likes efficient work. तो बिना एनर्जी के हुआ, बिना वर्क के हुआ, तो ब्रेन को बहुत पसंद आता है. तो इसीलिए ब्रेन कभी भी नहीं चाहता कि हम अपने हैबिट्स को कभी भी छोड़ें. फॉर दिस रीजन ब्रेन लाइक्स हैबिट्स, encourages habit, and resist whenever we try to randomly abandon or change any habit. That is why habit change is very, very hard. Now, how habits are formed? We must understand that our daily actions are result of our various metabolic or chemical reactions going inside our body. Actually, all life is formed of organic chemicals. If we go deep into the biology of our chemical sciences, which react together to make living happen. We are alive because cells in our body are constantly working to perform various actions or functions to carry life processes. So likewise, habits are specific action formed by specific cells in the brain that communicate with with one another frequently. क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है, स्पेसिफिक सेल हमारी ब्रेन के अंदर एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि ये काम हो रहा है. रिपीटेड एक्शन, और व्हेन वी सेव increase the frequency of that action, whenever we do that certain action or behavior, तो certain brain cells or brain areas, they get activated. When brain notices that brain cells are constantly, that is, there is frequency of actions, constantly, we are regularly active or interacting with each other. So what does the brain do? The brain labels or marks them as habits. जब भी हम कोई डेली रूटीन का काम करते हैं तो ब्रेन उन डेली एक्शंस को नोट करता है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी में वो एक्शंस कर रहे हैं, और फिर उन एक्शंस को जो वो सेल कर रहे हैं उनको सेल को वो नाम दे देता है हैबिट. These habit cells are all are linked to another group of cells in the brain, cells deep inside the brain basal ganglia, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है. हमारे बेसल गैंग्लिया के साथ वो लिंक्ड होते हैं वो सेल. सो वो कहाँ पे होते हैं? हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. So basal ganglia serves as many purposes along with controlling habits and oversees habits. वो habits को control भी करता है और देखता है कि जब भी कुछ होता है वो एकदम से उन cells को active कर देता है, जो उनको हमने habits का नाम दिया कि भाई जब भी कोई action करना है उन cells को कहता है कि आप ये काम फटाफट करिए. So
Basal ganglia perform two things. One, label brain cells as habits, कि ये सेल है, इन्होंने ये काम करना है, तो ये डेली रूटीन में हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये हैबिट है. और दूसरा, उन ब्रेन इंस्ट्रक्ट उन हैबिट सेल्स को कि अब आपको ये काम करना है. जब भी हम दोबारा से वो रूटीन में आते हैं तो वो काम करना शुरू हो जाता है. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, हैबिट्स रिक्वायर नो फ्यूल एंड इट इज एन एफिशिएंट वर्क व्हिच इज done by the brain. So I hope यहाँ तक मेरा जो मैंने जो बताया है वो समझ आया होगा सबको. यस मैडम, आया है. एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को कि ब्रेन जो है वो क्यों हम हैबिट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हम अनकॉन्शियस एफर्ट होता है, एनर्जी कम यूज होती है, डिफरेंट सेल्स ब्रेन के काम करते हैं उसके लिए, और सेल्स में हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वो वहाँ पे सेल्स हैबिट सेल्स बनते हैं, और वही हैबिट सेल्स वो काम करते हैं जहाँ पे हैबिट है. नाउ हमारा रिलेशन क्या है हैबिट्स एंड डीएनए का, क्योंकि साइंस की बात कर रहे हैं हम. सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आवर एवरीडे एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, वर्क, टास्क और व्हाटसोएवर वी डू all involve various chemical reactions. So those chemical reactions, they involve glucose and oxygen as fuel. So ये मैंने बात पहले भी कही थी. But all these chemical activities are controlled by specific unit or area of our DNA called genes. आपको हमको पता है सबको कि हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो कोई काम कराता है या किसी स्ट्रक्चर को बताता है उसको हम जीन्स कहते हैं, और वही जीन्स हमारी सारी एक्टिविटीज को, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सो whenever we do any work or habit, certain genes in our body, they get turned on or off. So various genes, they get turned on or off during our day-to-day activities. So as we all know that human body, it has approximately 100 trillion cells, and within each cell there is nucleus, and inside nucleus we all know that there is chromosome, and part of that functional unit, we call it functional unit, that is genes. और ये genes, ये chromosomes हमें हमारे parents से मिलते हैं. We all are aware that we get our genes from our parents. So here we need to understand that our daily habits. Why I'm talking about genes and DNA and on and off? Because we must understand that we can turn on or off these genes. Whenever we need to understand that if we can turn on genes and turn off the genes, so our daily routine can be good one. Bad habits, they turn on bad genes and turn off good genes, and good habits, they turn on good genes and turn off bad habits. So here it is obvious that bad habits will lead to definitely various physical and mental problems, whereas good habit will in turn, they will lead to good genes, and life will be without stress, and we will have good health. Here it is very important to know that few bad habits that turn bad genes on. They include, for example, if we have bad eating habit, we will not eat healthy food, lack of daily aerobic exercises, consuming excessive sugar, and all these. So these things are our bad habits, and they will lead to daily bad routine. They can alter our DNA, they can change our genome, because whenever we do something, certain genes, they get active. One more important aspect, it includes that when we change our DNA, very important to understand that if we understand that we can turn on off the genes, good genes are turned by good work and they turn off the bad genes. So when we make our daily good habit, daily routine, if it is formed in our body, then what will happen that those genes, our genes will one more important aspect, it includes that when we change our DNA, जब हम अपने DNA को बदलेंगे अच्छी हैबिट से, तो हम
इस बदले हुए डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जीन्स को, गुड जीन्स को ऑन कर रहे हैं और या फिर हम बैड जीन्स को ऑन कर रहे हैं। नाउ आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट वी गेट आवर जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। हैबिट्स कहाँ से आती हैं? पेरेंट्स से, क्योंकि हम पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसके सामने पेरेंट्स होते हैं, वो उनको देखता है और जो मिरर हमारे मिमिक्री वाले सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, उसको कॉपी करते हैं क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। फिर उसके बाद मेंटर्स हमारी जिंदगी में आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, मेंटोर्स। वी हैव एजुकेशन जो हमारे को मिलती है, उसमें हमारे जो हैबिट्स हैं वो अल्टर करते हैं। एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हमारी मिस्टेक्स, हमारे फेलियर्स, हमारा कल्चर, हमारे टीममेट्स, सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उनको जानने लगते हैं। सो ऑल दीज पीपल ऑल्सो चेंज आवर हैबिट्स। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल स्टोरीज सुनाते हैं जो हमारे अच्छी आदतें हमें डालते हैं, वो दे कैन टर्न ऑन द जीन्स। मेंटोर्स हैं, अगर हमें मेंटोर सही मिल गए, हमें गाइड करेंगे, हमारी हैबिट्स को, डेली हैबिट्स को चेंज करने में हमारी हेल्प करेंगे। एजुकेशन है, इट विल ऑल्सो डू द सेम। नाउ व्हाट प्रोवोक्स और सेट्स हैबिट? हमने बात की कि हैबिट्स बनते हैं, पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, एजुकेशन से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे, हम जिनकी आदतें हम अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी फॉलो देम। सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद स्कूल में टीचर्स, एंड देन फ्रेंड सर्कल्स एंड ऑल हु आर इन्वॉल्व अराउंड अस। लेकिन हैबिट बन गई, अब हैबिट को ट्रिगर कौन करता है? कैसे हैबिट स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले है विजुअल ट्रिगर्स, जैसे फूड का कमर्शियल्स जो टीवी पे हैं, हमारी हैबिट्स को चेंज करते हैं। जैसे कमर्शियल्स आते हैं, मैगी का कमर्शियल आ रहा है, हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं और हम मैगी खाना चाहते हैं। ऑडिटरी, जैसे सुबह उठते हैं, अलार्म क्लॉक चलता है और हम अपना दिन शुरू करते हैं। मैसेजेस आते हैं, हम एकदम से पॉपअप इन होते हैं मैसेजेस, हम देखना शुरू कर देते हैं। टाइम ऑफ द डे, हैबिट्स दैट वी इंगेज इन ड्यूरिंग द मॉर्निंग, आफ्टरनून, जैसे आदत होती है सुबह उठ के कोई वॉक के लिए जाता है, सो टाइम ऑफ द डे, कोई सुबह वॉक के लिए जाता है, कोई पूजा करता है, कोई सुबह लिखने बैठता है, कोई योगा करता है। सो टाइम ऑफ द डे, जैसे शॉवर का टाइम, सब। स्ट्रेस, एज स्ट्रेस हमारा ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, एज स्ट्रेस कंज्यूम्स मोर फ्यूल, टू कंपनसेट द ब्रेन परस्यूट्स अस टू फाइंड अ हैबिट टू एंगेज टू कंजर्व फ्यूल। स्ट्रेस होता है तो कई लोग खाना खाने लग पड़ते हैं, कई लोग सो जाते हैं। सो क्योंकि स्ट्रेस में हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, होते हैं उस टाइम पे, तो वो हमें बहुत, हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो कंज्यूम करता है। तो ब्रेन नहीं चाहता, एज यूजुअल आई टोल्ड यू, ब्रेन नहीं चाहता कि उसका ग्लूकोज कहीं पे भी वेस्ट हो, तो वो हमें किसी हैबिट में एंगेज कर देता है। उसके बाद है एसोसिएशन, एक फ्रेंड दूसरे दोस्त के साथ, वन फ्रेंड कैन ट्रिगर एनी हैबिट, जो हम देखते भी हैं हमारे एडोलसेंस में, हमारे टीन एज में हैबिट्स बदलती हैं, और अच्छी हैबिट्स भी बच्चों में आ सकती हैं, हम में आ सकती हैं, और बुरी हैबिट भी आ सकती हैं। जैसे दोस्त इंस्पायर कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर एक्सरसाइजिंग, वही दोस्त इंस्पायर भी कर सकता है कि लेट्स बंक द क्लासेस। एंड बिलीफ एंड इमोशंस, माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलीफ और इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हैबिट्स को ट्रिगर करने के लिए। नेगेटिव बिलीफ एंड इमोशंस ट्रिगर बैड हैबिट्स, positive trigger good habits. So we have to be very aware, we have to be conscious about our beliefs, because they play a crucial role in habit formation. A belief is formed in two ways, we all know, through internal or external programming. For example, self talk and statement, जो हम अपने आप से करते हैं कि ये होगा, ऐसे करने से ऐसा होता है, सुबह उठने से, एक्सरसाइज करने से मोटिवेटेड हम रहेंगे, तो हमारा बिलीफ है कि एक्सरसाइज करने से हम बीमारियों से दूर रहेंगे। सेल्फ टॉक है, हम करते हैं पॉजिटिव। थ्रू लाइफ इवेंट्स, जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े रहते हैं। सो द पीपल क्लोज टू अस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैनी बिलीव्स। They may give
positive feedback or some negative feedback too. The feedback या remarks जिसको हम कहें, they stick to form positive or negative emotions in us. अगर हमारे अंदर belief की वजह से emotions बनते हैं, if the emotions formed at the time of feedback are very strong, then it gives rise to belief. Then these beliefs, these emotions, they alter our behavior. अब जैसे हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं. अब इसको मैं, क्योंकि बिलीफ और इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हैबिट में, इसको मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट, और इसको मैंने आगे से आपने देखा है कि मैंने बहुत हाईलाइट भी किया है कि जो बिलीफ है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी बच्चे को कहा कि ये बच्चा सुरेश, रमेश, एनीवन इज अ गुड टेनिस प्लेयर, ठीक है, रिमार्क्स दिए हमने, उस रिमार्क्स ने उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट किए कि मैडम ने मुझे कहा या मेरे कोच ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर हूं मैं, तो वो और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो और ज्यादा खेलेगा, उसमें और ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर आएंगे. हमने भी अभी हम कहते हैं कि बच्चों को कभी भी नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, किसी को कह दिया यू आर एन इडियट, इडियट हो गया वो, उसने नेगेटिव इमोशंस आ गए, नेगेटिव, मैं तो इडियट हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे अच्छा बिहेव भी नहीं करना, उसने काम होमवर्क भी करना बंद कर दिया, उसने स्टडी करना बंद कर दिया, उसने किसी चीज में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया. लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसको फीडबैक वैसा दिया उसके लिए, उस फीडबैक में उसके अंदर वैसे ही इमोशंस ड्रॉ किए और उसके इमोशंस ने उसको वैसा ही आगे ड्राइव किया. बट द अमेजिंग फैक्ट अबाउट बिलीफ इज दैट नो मैटर हाउ डीप दे आर, दे कैन बी चेंज्ड. जैसे बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, देखी होंगी कि बहुत सारे टीचर्स ने मिरेक्युलसली अपने बच्चों की लाइफ को चेंज किया. कई बच्चे नहीं कुछ करते थे, काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब एक बार टीचर ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, और मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी एक कहीं पे कि एक किसी ने, ही इज नाउ एन एंटरप्रेन्योर एंड ही हैज रिटन दैट व्हेन आई वाज इन माय क्लास grade 5, every teacher used to call me that you are an idiot, you are an idiot, and I stopped working. But once a teacher came into my class and that teacher gave me remark कि तुम, मुझे विश्वास है कि तुम इस टेस्ट में बेशक फेल हुए हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम अगले टेस्ट में जरूर पास हो जाओगे. हुआ क्या कि मैंने उस मैम के रिमार्क्स को इतने पॉजिटिव लिया कि जब मैं घर में भी गया, सोचा, उनके रिमार्क्स मेरे दिमाग में चलते रहे. घर जाके मैंने कुछ नहीं किया, पहले किताबें खोली और साइंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया. बस में स्कूल जाते समय, घर आते समय मैं सिर्फ साइंस की ही टेस्ट को देखता रहा, वही पढ़ता रहा. और अल्टीमेटली जब मेरा टेस्ट हुआ, जब टीचर ने रिजल्ट बताया, तो उसने कहा कि मेरा विश्वास आज पूरा हो गया, मैंने कहा था कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है और आज इस बच्चे ने अच्छा किया. So these beliefs, these emotions, they play a very important role. So those who are close to us, the parents, teachers, they have this capacity. हम में as a teacher, हम में as a parent, हम में ये capacity है कि हम eliminate कर सकें negative limiting beliefs को और bad habits को. क्योंकि limiting beliefs जो हैं वो bad habits create करते हैं और वो जिंदगी भर उनके साथ रहते हैं. तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि जैसे हम रिमार्क्स लेते हैं, यू आर नॉट स्मार्ट, या फिर यू आर नॉट गुड, यू कैन नेवर हैव एनफ मनी. सो ये चीज़ें हमें ना सिर्फ बच्चों के लिए बट के अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को देखना चाहिए. क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ्स जो हम, अगर हमारे पास भी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ ये काम करने में. सो अपने लिए भी और अपने हमारे जो आसपास जिनके साथ हम डील करते हैं उनके लिए भी हमें इन बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा. सो वी शुड केयर दैट दीज लिमिटिंग बिलीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ एंड वी हैव, if we want our life to change, we have to change our beliefs also. Now shades of habits. कितने तरह के हैबिट्स होते हैं? हैप्पीनेस हैबिट्स, हमें पता है कि
हैप्पीनेस हैबिट्स से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो हमें हैप्पीनेस देता है, पॉजिटिव थॉट्स देता है। सो अब ये हैप्पीनेस हैबिट्स कैसे आती है, कैसे आ सकती है? डेली एक्सरसाइज, डेली लर्निंग, ग्रोइंग कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिसिंग पॉजिटिविटी, क्योंकि ये सब जो है ये हैप्पीनेस के हैबिट्स हैं। इससे हमें हमारे हम क्यों कहेंगे भाई एक्सरसाइज से क्या है, वाई? जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारी क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, पहले भी कहा कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड वेरी केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, दे मेक अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. हैप्पीनेस is the result of chemical reactions, and sadness is also the result of chemical reaction. So when we do exercise, or when we learn, when we have constructive relationships, when we meditate or do things, these actions, they release dopamine into our body, and this creates happiness. Financial success habits, ये भी हैबिट्स हैं भाई. हमें फाइनेंशियली सक्सेस कैसे होगा? सेविंग हैबिट्स, सेव करो, और स्पेंडिंग हैबिट्स, ये दोनों पे डिसाइड करता है कि हम फाइनेंशियल सक्सेस हैबिट्स अपने कैसे बना सकते हैं. क्या हमारे पास सेविंग हैबिट्स हैं, क्या हमारे पास स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं वो हैं, क्या हम जुडिशली स्पेंड कर रहे हैं? हेल्थ हैबिट्स, ये भी है. हेल्थ हैबिट्स आजकल तो हम बहुत ज़्यादा कोरोना में इसके लिए जिक्र करते हैं. डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन, डेली हम क्या खा रहे हैं, सुबह से शाम तक हम अपने हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं. Then there are certain habits which grow our brain and IQ. We can again I'm telling you that we can rewire our brain. इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कह सकते हैं. हम सीख सकते हैं, हैबिट्स कैन बी चेंज्ड, क्योंकि हैबिट्स जो होती हैं वो इनबिल्ड नहीं होती हैं. वो हम अपनी लाइफ में आने के बाद हम हैबिट्स को सीखते हैं, लर्निंग करते हैं. तो जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसको डी लर्निंग भी हो सकती है. सो रिवायर हो सकता है हमारे ब्रेन का. सो सर्टेन जीन्स कैन हेल्प इंक्रीज IQ ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम. और IQ कभी फिक्स नहीं होता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी हैबिट्स को, डेली हैबिट्स को चेंज करते हैं अपनी लाइफ में. जैसे वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ब्रेन डेवलप होता है, नया कुछ ना कुछ करने की स्किल्स डेवलप करते हैं. ऑब्वियसली ब्रेन के एरियाज जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, IQ इंक्रीज होता है. डेली एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी रात पानी जो है नॉर्मल पीते हैं, कोई दूसरी ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, उनकी अच्छी रात की नींद होती है, और हर दिन नई एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं. सो हैबिट्स जो हैं हमारे ब्रेन को ग्रो करवाते हैं. Now, relationship building habits. Powerful relationship building habits, they include success-minded people, and they exclude toxic people. Like, जो हमारी पावरफुल रिलेशनशिप है, हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ाते हैं, और कौन से हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को, हम लोगों को पीछे लेके जाते हैं. सो वी शुड स्ट्रेंथन दोज पॉजिटिव रिलेशंस. कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? बस एक कॉल ही कर दिया, बर्थडे कॉल कर दिया, एक मैसेज कर दिया, उनकी कोई लाइफ का इवेंट है उसमें कॉल कर दिया, उनके साथ नेटवर्किंग की, रिश्ता बना के रखा. सो ये सब चीज़ें जो है हमारी, ये डेली हैबिट्स जो हैं, ये हैबिट्स हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं. नाउ कमिंग टू द मेन, कैसे हम हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग हैबिट्स, फर्स्ट step is set a dream. Second step is set a goal, and then third step is building habits around each goal. Now, how to set a dream? It is an act of clearly defining dream, कि हमारा विजन क्या है फ्यूचर का, हम क्या चाहते हैं. अभी हम अगर इधर हैं तो आगे रियलिटी में हम क्या चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमें अपने आप से, वी हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स, डेलिब्रेट क्वेश्चंस. व्हाट आई वांट in my life after 5 years, after 10 years, after 15 years and 20 years. कैसे मुझे किस जगह पे जाना है, मुझे कितना पैसा चाहिए,
मुझे कैसा घर चाहिए, हर चीज जो हम एक फ्यूचर के लिए सपना देख सकते हैं वो देखें, और वो सपना बिल्कुल एक डिटेल्ड हो, उसको लिखें, राइट इट डाउन, एवरी डिटेल ऑफ फ्यूचर, कितनी अर्निंग, कैसा घर, कैसा गाड़ी, कैसे पैसे, मैं कैसी, मेरी हेल्थ कैसी। देन लुकिंग इनटू डिटेल्स ऑफ फ्यूचर लाइफ, उनको बुलेट पॉइंट्स में हम लिखेंगे। सो पहले सपना देखें, डिटेल्ड सपना, फिर सपने को बुलेट पॉइंट में हम लिस्ट करें हर एक डिटेल को, कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, कैरियर, हेल्थ, होम, एक्टिविटीज। फाइनली उसको हम स्क्रिप्ट करें, एक कहानी की तरह एक बड़ी पिक्चर बना के लिखें, एंड मेक लिस्ट ऑफ ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस। दिस विल बी like a springboard for creating specific goals and around each one of your dreams. सपना देख लिया, मेरे को अगले कुछ सालों में मुझे जी डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनने के लिए मेरा सपना है, मैं ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, मैं डायरेक्टर होंगी, मैं ऐसे होंगी। नाउ फॉर ईच ड्रीम set a goal. The goal setting process it requires to build goal around each wish. कि मुझे गोल एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा एक्शन होता है। गोल सेटिंग में हमने क्या करना है कि हमने हर एक ड्रीम के लिए, हर एक विश के लिए अपना गोल करना है। व्हाट वुड आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक ईच विश और ड्रीम कम ट्रू। मुझे अगर टीचर बनना है, राइट, बच्चे को टीचर बनना है, क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मुझे बीएड करनी पड़ेगी, मुझे सीटेट करना पड़ेगा। तो ये मेरे गोल्स हैं कि ये ड्रीम के लिए, टीचर बनने के लिए मुझे ये करना है। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज हमने अपने आप से ये बात करनी है कि मैंने तो ये सपना देखा, कैन आई परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, बिकॉज योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, दे हैव टू बी रियलिस्टिक। गोल्स आर गोल्स ओनली व्हेन दे इन्वॉल्व फिजिकल एक्शन। मेरा सपना है मुझे स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए मुझे गोल सेट करने हैं कि हाँ जी, मेरे पास पहले एक पूरा प्लान होना चाहिए, पूरे पेपर्स होने चाहिए, मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, मेरे ये होना चाहिए, मेरे वो, तो सेट करने हैं गोल, अचीव अ ड्रीम। नाउ बिल्डिंग हैबिट्स अराउंड ईच गोल। पर मेरे को टीचर बनना है तो मुझे ग्रेजुएशन करनी है। नाउ ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे पढ़ना है, सो पढ़ना मेरा डेली हैबिट है। आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू कंप्लीट स्टडी फॉर सो मेनी आवर्स। हेल्थ मेरा है कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, गोल है मेरा कि मेरे 60 प्लस के बाद मैं हेल्दी रहूं। तो मेरे को क्या है, मेरे को डेली उस गोल के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे अपना हैबिट उस गोल के लिए अराउंड सेट करना है। मॉर्निंग 5 AM आई हैव टू गेट अप एंड आई हैव टू एक्सरसाइज। सो पहले सेट करना है ड्रीम, सेट करना है गोल, फिर बिल्डिंग हैबिट अराउंड ईच गोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हमारा जो हैबिट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग हैबिट्स। हैबिट्स बन चुके हैं, हम बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, हम स्कूल में डील कर रहे हैं, स्कूल में भी बच्चे जब आते हैं उनके पास हैबिट्स होती हैं। अब हमने हैबिट्स को चेंज करना है। सबसे पहले we must understand that change is a part of life, but when it involves a habit it is very hard, because वही बात, brain fights when it comes to change a habit. As a result जो भी हमारे न्यू ईयर प्लान्स होते हैं वो सारे चौपट हो जाते हैं, बिकॉज ब्रेन अपने हैबिट्स को छोड़ना नहीं चाहता। ऑल्सो व्हेन एन इंडिविजुअल एंड्स एन ओल्ड हैबिट आफ्टर फ्यू वीक्स, ब्रेन उसको कहता है भाई वापस आ जाओ, क्योंकि ब्रेन न्यू हैबिट बनाने में उसको फ्यूल यूज हो रहा है, उसका वर्कलोड बढ़ रहा है, वापस हम उस पर आ जाते हैं। So therefore this motivation, willpower, everything wears off and we become stressed or we come back to old habits. It happens with everyone and we are not special, and you are not special because it requires a lot of effort and investment. So if we are not aware of tricks to change habit, then we have to rely on some logical and interesting and easy changes ताकि हम अपने हैबिट्स को चेंज कर सकें। सो
पहले क्या है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ हैबिट्स को जानना है कि पहले हमें हैबिट की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद हम उनको ग्रेडिंग करेंगे और फिर हैबिट की चेकलिस्ट बनाएंगे. नाउ हैबिट अवेयरनेस. इन ऑर्डर टू चेंज आवर हैबिट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ देम. अब अवेयरनेस क्या चाहती है? इट रिक्वायर्स ट्रैकिंग ऑल ऑफ आवर हैबिट्स फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप टिल वी गो बेड. हमारी मॉर्निंग डे टाइम से लेकर रात तक. ओनली 2 days ऑफ ट्रैकिंग इज इट ऑल रिक्वायर्स. 2 दिन में ही हमें पता चल जाएगा कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं. एंड बट टू डू इट ड्यूरिंग द वर्क वीक और वर्क प्लेस इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड हैबिट. सो वी शुड, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दी है, हैबिट अवेयरनेस शेड्यूल जो मैंने बताया है एक IT सेक्टर का है, इसी के एग्जाम्पल मैंने ली है. वेक अप एट 9, 7, have a cup of tea, take shower, commute to work by car and listen to loud music, check email, work, take a break, gossip with colleagues, respond to emails, lunch with colleagues, gossip with during lunch, walk in after time. So all this is what I watch TV for 3 years, eat dinner, have some wine or beer. ये सब मैंने अपने हैबिट्स को जाना कि मैं सुबह से शाम तक 11 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो हम अपने हिसाब से जो हमारी डेली रूटीन है हम उसके हिसाब से अपने हैबिट्स को जान सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज हैबिट अवेयरनेस. नाउ सेकंड इज, अब हमने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव में ग्रेड करना है. वेक अप नेगेटिव, हैव अ कॉफी नेगेटिव, shower, get ready positive, commute in car and listen to loud music is negative. So अपने जो डेली रूटीन है हमारी, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने ग्रेडिंग देनी है. हाँ जी, ये काम मेरा पॉजिटिव है और ये काम मेरा नेगेटिव हो रहा है. क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे गुड हैबिट्स कौन से हैं जिसको हम पॉजिटिव करेंगे और बैड हैबिट्स कौन से हैं नेगेटिव करेंगे, तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी. देन कम्स कि अब हैबिट अवेयरनेस हो गई, अब हमने हैबिट ग्रेडिंग के बाद अब हमने हैबिट चेकलिस्ट बनानी है. जैसे मैंने कहा कि हमारी 3 होते हैं, हैबिट अवेयरनेस, हैबिट ग्रेडिंग एंड हैबिट चेकलिस्ट. अब चेकलिस्ट में मैंने क्या किया, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड हमारी गुड और बैड हैबिट हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब हमें चेकलिस्ट बनानी है कि जो रिच हैबिट हम कहते हैं उसको, कि रिच हैबिट चेकलिस्ट है हमारी, भाई जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी हेल्थ है, जो अच्छे ओहदे पे हैं, जो अच्छी जगह पे हैं, जिनके हैबिट्स अच्छे हैं, वी कॉल देम एज रिच हैबिट चेकलिस्ट. नाउ दिस चेकलिस्ट विल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज. कि अब हमने चेकलिस्ट बनानी है, मॉर्निंग हैबिट चेकलिस्ट, डे टाइम हैबिट चेकलिस्ट एंड नाइट टाइम हैबिट चेकलिस्ट. The most important rule for that is that every phase checklist requires a continuous and regular follow-up, at least 7 days initially, and after it to be followed along with other phase checklist. Now phase 1, that is morning habit checklist. Habit change is a process, we all know, time लगता है and it takes time. The best approach is to focus on changing a few simple habits first. फेज 1, क्योंकि हम एक दिन एकदम से कहें कि पूरे दिन की रूटीन हम चेंज कर लें, हमारा ब्रेन नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, तो हम ब्रेन को डॉजिंग कर रहे हैं. सो फेज 1 में हम क्या करेंगे, हम अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को 7 दिन के लिए चेंज करेंगे. जैसे ये एग्जांपल मैंने दी है, 6 बजे उठी, मैंने 30 मिनट के लिए पढ़ा, जो मैंने एक्सरसाइज 30 मिनट के लिए की, मैंने माई टू डू लिस्ट प्रिपेयर की. ड्यूरिंग माई कंटिन्यू, मैंने जब मैं काम पे गई या कहीं पे भी गया, मैंने पॉडकास्ट सुने या कुछ रिलीजियस मॉर्निंग चैंट सुने, मैंने चाय के बदले पानी पिया, मैंने जंक फूड नहीं खाना है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में. तो आई डिड 3 थिंग्स इन दिस मॉर्निंग दैट विल इज रिलेटेड टू माई पर्सनल ग्रोथ. सो द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर represents an investment which we make in our daily life. Now take some time to create your own rich habit morning checklist in this schedule. 7 दिन के लिए हमने बना लिया, हैबिट्स बनाई
और हमने उसको चेकलिस्ट में डाल दिया कि संडे मंडे क्या मैं ये कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। कंटिन्यूसली हमें इसको चेक करना पड़ेगा, तभी हमको उसको फॉलो कर सकेंगे. सो फॉर नेक्स्ट 7 days दिस बिकम्स आवर कस्टमाइज्ड हैबिट चेकलिस्ट. ईच डे टिक करना है. मैंने इसको फॉलो किया, मैंने चेकलिस्ट बना ली कि 6 बजे उठ रही हूँ, संडे को उठी टिक कर दिया, मंडे को उठी टिक कर दी, ट्यूसडे को नहीं उठी क्रॉस कर लिया. सो इट विल हेल्प फोर्स अकाउंटेबिलिटी. अब हम अपनी हैबिट्स के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे टू फॉलो न्यू मॉर्निंग हैबिट्स. आफ्टर 7 days these habits will begin to take root, create synapses. जो मैंने कहा ब्रेन में हमारे इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन क्या है? स्नैप्स कहते हैं हम उसको साइंस में. आपस में वो रिलेट होना शुरू हो जाते हैं, कनेक्शंस बनाने शुरू कर देते हैं, और वो जैसे ही हम उस हैबिट को रिपीट कर रहे हैं तो वो सिनेप्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. एंड इफ वी आर एबल टू चेक ऑफ 30% और मोर ऑफ न्यू हैबिट्स, तो बहुत सारा काम हमने अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए कर लिया. So it is important to understand that just changing a handful of daily habits, हैंडफुल जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिस्ट पीछे दिखाई हम सब कुछ कर लें, लेकिन अगर 10 में से हम 6 भी कर लेते हैं, 7 भी कर लेते हैं, तो भी हमारी लाइफ में वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा बाकी की जो हैबिट्स हैं उसको चेंज करने का. नाउ देन आफ्टर फॉलोइंग मॉर्निंग चेकलिस्ट फॉर 7 days continuously, now we are ready to move to the next phase, that is changing our daytime habits. This is an example. I read for 30 minutes during lunch. I did not gossip with my fellow workers. I did not eat junk. I checked and responded email. हमने एक specific time मैंने रख लिया. During my commute from work, I relaxed myself listening to music. मैंने 4 ग्लास पानी पिया. So this मैंने एक checklist बना ली अपनी नई हैबिट्स की. Now again एक हमने daytime habits को now take some time to create your own daytime checklist. जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, अब बनाइए. वंस अगेन यू हैव टू डिवोट, इसके लिए भी 7 दिन देने हैं. लेकिन क्या करना है, जब हम डे टाइम हैबिट को फॉलो कर रहे हैं तो हमने मॉर्निंग की हैबिट्स को कंटिन्यू रखना है, उसमें हमने डे टाइम्स के हैबिट को ऐड कर दिया. सो हमने दोनों को मॉर्निंग और डे टाइम हैबिट्स को कंसोलिडेट कर लिया है. तो हमारी ये हैबिट्स बन गई, दोनों को हमने कंसोलिडेटेड करके अपने 7 दिन की रूटीन की चेक लिस्ट में ले आए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नाइट. सो 7 दिन पहले मॉर्निंग किया, तो 7 दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून को हमने मिक्स कर दिया डे टाइम को. अब अगले 7 दिन हमने नाइट, उसके बाद 21 दिन के बाद हमने नाइट हैबिट्स शुरू कर दी आफ्टर 15 days. क्या किया मैंने रात को टीवी कम देखा, मैंने 1 hour रिक्रिएशनल में किया, he spent 1 hour in more pursuing dream goal. मुझे जो चाहिए स्किल चाहिए. I met with my neighbors socialization के लिए. I did 30 minutes of self education. I interacted with my parents. I managed my wardrobe. So इसी को एग्जाम्पल को लेके हमने एक कंसोलिडेट अपनी पहले लिस्ट बनाई अगेन, और फिर तीनों को मिला के हमने कंसोलिडेटेड 21 वंस अगेन 7 दिन हमने कंटिन्यू कर दिया, और हमारे 21 दिन की तक ये न्यू कंसोलिडेटेड हैबिट्स की एक लिस्ट हमारे पास बन गई, जिसको हम फॉलो करते रहेंगे. वंस योर कंसोलिडेटेड रिच चेकलिस्ट इज कंप्लीट, अब इसको डेली रूटीन में यूज करना है, और ऐसे ही चेकलिस्ट के साथ इसको अकाउंटेबल देना है टिक और क्रॉस करके. हमारी जो न्यू हैबिट्स हैं ये हमारे सिस्टम में, स्नैप्सिस में, ब्रेन में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, क्योंकि जब हम अकाउंटेबल होंगे, जब हम डेलिब्रेट होंगे, तो ब्रेन इसको एक्सेप्ट करने लगेगा. नाउ shortcuts to habit change. There are 6 powerful shortcuts to habit change. Number 1, habit merging. Number 2, law of association, change in environment. Start small, schedule your new habits, firewall your bad habits. So habit merging. Habit merging क्या है? It simply means think of an existing habit and add a new habit to that, so that small bit, when an old habit does not perceive a new habit. Oh, what happened?
Just a minute. My slide is visible? Yes, visible, but first slide is visible. Yes, yes, sir. I'm coming to the last one. This is my last slide. This is last topic. Just a minute. So, for example, if you have an old habit of drinking coffee every day, जैसे आप हैबिट को मर्जिंग कैसे करना है, नहीं छोड़ती पुरानी हैबिट, तो मैंने क्या किया, मुझे कॉफी पीने की आदत है, अब कॉफी मैंने क्या किया कि मैंने उसको अब मैंने को कॉफी की जगह पानी पीना है, तो जहां जहां कॉफी है मैं वहां साथ में पानी की बोतल रख दूं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने फ्रिज के ऊपर मेरे को मेरी कॉफी का डिब्बा जहाँ पे है वहां पे भी पानी का गिलास रख दूं। अगर मैं कॉफी को कूलर के ऊपर रखती हूँ तो मैं वहां पे पानी की बोतल रख दूं। अगर फ्रिज में कॉफी पड़ी है तो मैं वहां पे भी पानी। तो क्या होगा, जब भी मेरा मन, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन मुझे कहेगा कि गो एंड हैव कॉफी, तो वहां पे मुझे पानी दिखेगा, तो मैं कॉफी की जगह पानी पीऊंगी। सो वी हैव टू मर्ज, राइट? देन लॉ ऑफ एसोसिएशन. Old habits can be triggered by individual you associate with. If you are trying to get rid of some old habits, we need to spend our association with those who can act as trigger for good habits. For example, अब मेरा कहने का मतलब है कि हम किनके साथ रहते हैं वो हमारे हैबिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे रीड करने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे एसोसिएशन उन लोगों के पास है जो रीड नहीं करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो स्टोरीज को डिस्कस करते हैं, जो रीडिंग्स को डिस्कस करते हैं, जो कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, जब मैं उन लोगों के साथ एसोसिएट हो जाऊंगी तो उनके हैबिट्स मेरे साथ एसोसिएट होने लगेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों के दोस्त अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्त जो करता है बच्चा उसको सीखता है। हम जैसे लोगों के साथ रहने लगते हैं, हमारे अंदर वैसी ही हैबिट्स आने लगती हैं। थर्ड इज चेंज इन योर एनवायरनमेंट. इट इज मच इजियर टू अबंडन ऑल हैबिट्स एंड फॉर्म न्यू हैबिट्स व्हेन आवर एनवायरनमेंट चेंज. न्यू होम, न्यू नेबर, न्यू फ्रेंड, न्यू जॉब, न्यू कलीग। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पून, नाइफ, फोक आर नो लॉन्गर when they were used to be. हम अपने काम को पहले पैदल जाते थे। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाड़ी आ गई, नई चीजें आ गई। अब पहले मैं जब पढ़ती थी तो मैं 1-2 किलोमीटर चल पड़ती थी, क्योंकि तब गाड़ी नहीं थी। लेकिन फैसिलिटी आई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, प्रिंसिपल बने, गाड़ी आ गई। नाउ आई कम्यूट थ्रू व्हीकल ओनली। वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले टीचर थे, हैबिट था, घंटी बजी, वाइंड अप किया, घर निकल गए। बट नया स्कूल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक काम सबका फिनिश नहीं होगा आई कैन नॉट गो, जब तक मेरा डेली टास्क नहीं होगा। सो एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ स्टार्ट स्मॉल। एकदम से, जैसे मैंने पहले कहा कि हम हैबिट्स को 3 हिस्सों में बांटा। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी जिंदगी को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दूंगी एक दिन में, नॉट पॉसिबल। सो स्मॉल हैबिट्स चेंज जो है involves adding habits that require very little effort. For example, include drinking more water during the day, listening to audiobooks while you commute to work, do yoga for 30 minutes, watch TV for 1 hour only. So हमने खत्म नहीं किया, हमने उसको थोड़ा इधर से कम किया, थोड़ा उधर से ज्यादा किया. You can also use your time for existing habits. जैसे स्क्रॉलिंग की आदत है अगर, तो इंटरनेट भी देखो, लेकिन कम समय के लिए देखो। वो टाइम जो है किसी और चीज को दो। द स्मॉलर इजियर द हैबिट चेंज। जितना हम एकदम से, मैं कहूँ कि मैं फोन देखना बंद कर दूंगी, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी नहीं। बच्चों को आपको फोन छोड़कर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप उनके, अगर आदत आपको पता है 3 घंटे की है, तो उनको आप टाइम दे दो कि 2, आप 3 नहीं, आपने 1 घंटा करना है, तो वो पॉसिबल है जो एक्सेप्ट हो जाए। हमारी बॉडी भी वैसा ही करती है। हम अपनी बॉडी में अगर चेंज चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, तो पॉसिबल, रियलिस्टिक और थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम करके उसमें ऐड करें तो हमारी न्यू हैबिट्स फॉर्मेशन हो जाती है। देन शेड्यूल योर न्यू हैबिट। इट मीन्स कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं। रिसर्च शोज दैट 67% ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स मेंटेन अ टू डू लिस्ट। यस,
वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मैंने क्या करना है, कि मेरा प्रोसेस टू सक्सेस ऑफ लाइफ वही बताएगा जो मैं डेली कर रही हूँ. So one of the tricks self-made millionaire use is to incorporate certain daily good habits. तभी हम इनको कहते हैं rich habits. Specific daily habits show and automatically every day on their to-do list. क्योंकि उसके लिए हम अकाउंटेबल है. मैंने लिख दिया सुबह मैंने ये करना है, आज दिन में मैंने ये करना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये पीना है, मैंने आज इतनी किताब पढ़नी है, मैंने आज ये नया स्किल अडॉप्ट करना है. सो ये चीज़ें मेरी लाइफ को एक नई चीज देंगी. और मैं अगर मैंने टू डू लिस्ट बना ली है तो मैंने खुद ही अपने आप को अकाउंटेबल बना दिया कि आज मैंने क्या करना है. नाउ फायरवॉल योर बैड हैबिट्स. One trick to habit change is to make it harder for us to engage in bad habit by creating some type of firewall between you and the bad habit. For example, जंक खाते हैं हम टीवी देखते समय. बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है, जो हमारे पैंट्री में होता है, कहीं पे नहीं होता है. अगर वो जंक हमारे घर में आए ही नहीं तो खाने की आदत सुधर जाएगी. अगर है ही नहीं अवेलेबल, टीवी देखते हुए कुछ जंक खाना घर में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बैड हैबिट हमारी खत्म हो जाएगी. सो हमारी आदतें जो स्नैकिंग की, टीवी जंक आदत नहीं है, आदत है कि टीवी खाते देखते देखते कुछ ना कुछ खाना है. अब जैसे कई लोगों की आदत होती है डिनर के बाद लेट नाइट तक मोबाइल पे लगे रहना. अब इस आदत को कैसे छोड़ें? मोबाइल या लैपटॉप, बच्चे गेम्स खेलते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, अननेसेसरी. नॉलेजेबल तो कुछ होता नहीं, लेकिन फेसबुक स्क्रॉल किया, इंस्टा स्क्रॉल किया, सो मेनी थिंग्स वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग. नाउ इसको आदत को कैसे छोड़ें? सबसे पहले अगर लैपटॉप है, स्विच ऑफ करके उसको अपने कमरे से किसी और दूसरे कमरे में छोड़ के आ जाए, ताकि वहां तक पहुंचने में भी हमें दिक्कत हो. डिनर से पहले ही अगर तो कोई इंपॉर्टेंट काम है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो हमने उसको पैक किया, बैग में डाला और दूसरी जगह पे छोड़ दिया. क्योंकि अब मुझे उसको लाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा जो मेरी आदत में नहीं है, तो मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम मुझे कहेगा ही नहीं कि जाके वो लेके आओ. क्योंकि हमारा विल पावर लेट नाइट में धीरे धीरे कम होने लगता है. सो फायरबॉल अगर हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, हैबिट्स के अगेंस्ट, तो बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं. सो I must say at the end that change requires a lot of effort, but with our dedication and strong willpower, everything is possible, because impossible also says I am possible. So thank you all